रीड करेगा कोई फर्स्ट क्वेश्चन? Okay, so 2017 का क्वेश्चन है. The Election Commission of India is a five. I think ये क्वेश्चन हमने देखा था शायद, right? नेक्स्ट पे चल दो. हो गया. क्वेश्चन नंबर 2, डिलिमिटेशन. Okay, so with reference to Delimitation Commission, consider the following statements. So the order of the Delimitation Commission cannot be challenged in a court of law. सही है ना शायद? सही है. Correct. Second statement is when the orders of the Delimitation Commission are laid before the Lok Sabha or State Legislative Assembly, they cannot affect any modification in the orders. ठीक है. ये सही होगा. नहीं है क्या? ठीक है, इसको देख लेगा. नंबर 2 था ये. क्वेश्चन नंबर 2 का सी है. ठीक है, दोनों सही हैं. The Delimitation Commission is established by Government of India under the provision of Delimitation Act. The main task of this commission is to redraw the boundaries of both Assembly and Lok Sabha constituency. The representation from each state is not changed. However, the number of SC and ST seats in a state are changed in accordance with the census. Okay. The orders of the commission cannot be challenged in the court of law. Lok Sabha and state legislature does not have power to modify these orders. The Delimitation Commission have been set up only 4 times in the past: 1952, 63, 63, 73 and 2002. ठीक है, 4 बार बना है. एंड आई थिंक अभी रिसेंटली भी शायद चल रहा है ना इसके ऊपर, जम्मू कश्मीर को लेके. शायद आइडिया है क्या किसी को? थोड़ा और देख लेते हैं यार डिलिमिटेशन के बारे में. Bifurcation of Jammu and Kashmir into UT and Ladakh had made delimitation of their electoral constituency inevitable. Recently, the EC has held internal discussion. ठीक है. Under Article 82, the Parliament enacts a delimitation act after every census. Under Article 170, states also get divided into territorial constituency as per delimitation act after every census. ठीक है. So according 82 तो मतलब वो यूनियन के लिए होगा और 170 स्टेट्स के लिए होगा. Once the act is in force, the union government sets up a delimitation commission. The first delimitation exercise was carried out by the president in 1950 to 51. The delimitation commission was enacted in 1950. ठीक है. तो पहली एक्सरसाइज जो थी वो उस एक्ट से पहले ही कंडक्ट कर दी गई थी. उसके बाद में ये इसके लिए लॉ या एक्ट बनाया इन लोगों ने बाद में. ठीक है. और फिर हमने देखा 4 बार अब तक बन चुका है. और delimitation commission is appointed by the president of India, works in collaboration with the election commission of India. ठीक है. अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और वर्क करता है इलेक्शन कमीशन के साथ. कंपोजिशन क्या होती है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स. ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन होती है. और to determine numbers and boundaries of constituency, to make population of all constituency nearly equal, to identify seats reserved for scheduled caste and scheduled tribe. ये पता ही हमको. In case of difference of opinion among the members of the commission, the opinion of the majority prevail. ठीक है, 3 मेंबर है तो ऑटोमेटिकली मेजोरिटी रहेगा ही. The Delimitation Commission in India is a higher body whose order have the force of law and cannot be called in question before law.
प्रॉब्लम्स क्या है डिलिमिटेशन के साथ? स्टेट्स दैट टेक लिटिल इंटरेस्ट इन पॉपुलेशन कंट्रोल could end up with greater number of seats in parliament. The southern state that promoted family planning faced possibility of having their seat reduced. तो इसीलिए शायद 1971 में उस सेंसस को जो ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज था, ये जो नंबर ऑफ सीट्स थी इन लोकसभा एंड राज्यसभा उनको फ्रीज कर दिया गया था. ठीक है. In 2008, delimitation was done on the basis of 2001 census, but the number of seats in the assemblies and the parliament decided as per 1971 census was not changed. तो 2008 के अंदर भी डिलिमिटेशन किया गया था, बट नंबर ऑफ सीट्स को नहीं चेंज किया था, उन्हें आपस में थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर दिया था. ठीक है. Alright. Way forward, although the freeze on the number of seats in Lok Sabha and Assembly should have been lifted after the 2001, after another census, after another amendment has been postponed until 2026. हमने देखा था कि 2026 तक अभी चलता रहेगा ये चीज. ठीक है. Alright. ये हो गया इसके बारे में. वापस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. Next question, question number 3. Consider the following task. Superintendent's direction and conduct of free and fair elections. ये तो है. ये देख लिया ना? हेलो. देख लिया था क्या ये? इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है ना? देख लिया था. हाँ. ठीक है. Alright. Next one. Consider Question the 4. following statements about recent amendment to the election law by the RPA Act 1996. ठीक है. Any conviction for the offence of insulting the Indian national flag or the Constitution of India shall entail disqualification for contesting elections to Parliament and state legislatures for 6 years from the date of conviction. ये है क्या? क्वेश्चन वैसे बहुत पुराना है ये वाला, बट देख लेते हैं इसको. हाँ, बट Idea अभी किसी को- भी प्रोविजन है. ओके, अभी भी है ये. ये 6 years है. 6 years का तो देखना पड़ेगा. 1 मिनट. ठीक है, देख लेंगे. अभी नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज में पढ़ लो. There is an increase in the security deposit which a candidate has to make to contest the election to Lok Sabha. ये Increase बढ़ा तो दिया होगा. हाँ. में भी false claims के रोकने के लिए increase किया. करेक्ट. A candidate cannot now stand for election from more than one parliamentary constituency. ये तो ये नहीं तो रॉन्ग है. रॉन्ग है ये तो. So, no election will now be countermanded on the death of contesting election. ये गलत है. थर्ड गलत हो गया ना, तो फिर बी आंसर बचता है इसका. क्वेश्चन नंबर थर्ड का का बी है. ठीक है. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1996 restricted the number of seats of a candidate can contest from 2 seats. ठीक है. मतलब 2 एक बात seats. बताओ, ये डेथ हो जाती तो हो जाता है ना इलेक्शन कैंसिल? डेथ पे तो आई थिंक नहीं होता है वो, फिर वापस बाई इलेक्शन होता है वहाँ. जैसा अभी क्या नाम था उसका, वेस्ट बंगाल में हो रहा था, तो आई थिंक 2 कैंडिडेट्स से दे डाइड, तो उसके लिए फिर बाई इलेक्शन अलग होता है. ये काउंटर मैंडेट मतलब क्या होता है? काउंटरमैंडेटेड पड़ेगा. वही है ना, काउंटर मैंडेट Cancel. रिवोक. कैंसिल होता है. अच्छा, हाँ. कैंसिल ही लिख देता है. इतना बारीक. ठीक है. कैंसिल था इसका मतलब. नो कैंसिल इलेक्शन तो नहीं होता है. अच्छा ठीक है.
All right. Question number 5. The state which has the largest number of seats reserved for the scheduled tribe in Lok Sabha is Scheduled type होगा ना. एमपी होगा ना. Madhya Pradesh. शक्तिमान यार तेरे माइक से काफी नॉइज आ रहा है. देख थोड़ा उसमें. हवा में उड़ रहा है इस समय यार. सही है. हाँ ठीक है. अब ठीक. बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, एमपी. तो आई थिंक एमपी होना चाहिए ना. एमपी होना हाँ. चाहिए. तो सबसे आई थिंक इन स्टेट में अगर देखें तो ट्राइबल पॉपुलेशन एमपी में ही है इन स्टेट. MP की PVTG बताओ. सहारिया. एक ही है क्या? भील भी तो है ना यहाँ की. दोनों वैसे कंसिडर करते हैं राजस्थान. बेल तो मतलब काफी जगह है. राजस्थान में भी है, एमपी में भी है, थोड़ा बहुत है. वो महाराष्ट्र में मिलता है. कौन? भील? बेल पीवीटीजी में आते हैं भील? का आइडिया नहीं नॉर्मल है. शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं. हाँ, PVTG में नहीं, आते हैं ना. आते हैं. एक चेक कर. चेक कर लो. मतलब इसका आंसर यार बस एमपी था. नहीं, आई थिंक बिल पीवीटीजी नहीं है. हाँ, क्योंकि व्हील काफी प्रोमिनेंट है. अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो सबसे प्रोमिनेंट में से एक है. वो बस वो बाइगा मेन स्ट्रीम हो गया है ना. जो लोग मेन स्ट्रीम हुए नहीं है वो उनका क्राइटेरिया है प्रिमिटिव एग्रीकल्चर और काफी. करेक्ट. ओके. और उनका पॉपुलेशन भी डिक्लाइन पे होना चाहिए. जैसे कि अगर बात करें व्हील की तो उनका तो मेरे ख्याल से काफी प्रोमिनेंट सुनने में आते हैं वो लोग. एक बार मध्य प्रदेश की वो देख लो PVTG. वहाँ तो अब वो- कम ही होंगे क्योंकि वहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब ज्यादा है. वहाँ फिर 5-6 से ज्यादा नहीं होंगे पीवीटीजी से. 4-5 ही होंगे मुझे लगता है. देख लो. सहारिया है, कमर है, हिल कोरवा है, बिरहोर, भरिया, बैगा और अबुज मरिया. अबुज मशिया, बैगास, भरियास, हिल कोरबास, कमर, सहरियास और बिरहोर. ठीक है. अबुज मेचियास और ये जो हिल कोरबाज है ना, ये छत्तीसगढ़ के हैं बेसिकली. और जो बेगा, सहरियाज, बिहोर हैं और भारिया, वो एमपी के हैं क्योंकि वो मिक्स दिए हैं. गया ऑप्शन. और टोटल ट्राइबल 75 है. 75. वैसे एक- सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था शायद वो प्रीलिम्स में 95 में ऑप्शन था. गलत करके आया था मैं. या आई रिमेम्बर. इस बार फोड़ोगे तुम. इस बार दो साल PVTG का क्राइटेरिया है प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का भी एक डिटेल क्राइटेरिया है ना. क्राइटेरिया आइडिया नहीं है. ये आर्टिकल देख लो. अंडर आर्टिकल ठीक है. The project and authorities should tap resources for above activities also from other schemes of Ministry of Tribal Affairs and centrally sponsored scheme of Line Ministry and scheme of state government, particularly the TSP. ये scheduled areas के लिए जो था ना, component of the state plan to ensure convergence of funds and manpower under the scheme. The fund under this scheme would be available only for important items, activity for the survival, protection and development of PBTGs, which are not specifically catered to by any other scheme of the state or government or by any guideline governing the utilization of fund under special assistance to tribal sub-plan and Article 275 of the Constitution. Okay. ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी इसके अंदर बात करता है. उसके अलावा कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट प्लान है. तो इस प्लान का अगर मतलब पर्पस बोले तो पीवीटीजी से रिलेटेड है. ठीक है. बाकी तो ये सारी छोटी छोटी स्कीम्स हैं. ये गवर्नमेंट का ही डॉक्यूमेंट है. उस ट्राइबल मिनिस्ट्री से निकाला था मैंने. और इसमें सारी लिस्ट दी हुई है कितनी सारी कहाँ है. तो किसी को पढ़ना हो तो देख सकता है. तो हमने पढ़ा था ना, हाईएस्ट है ओडिशा में, राइट? पूरा हाईएस्ट. और सेकंड हाईएस्ट आंध्र प्रदेश MP.
नो एमपी नहीं है, एमपी में 7 आंध्र हैं, प्रदेश में भी बहुत आंध्र सारे, प्रदेश में देख लो ना 12 हैं, 12 हैं, ये और ओडिशा में 13 है ना। 13 ओडिशा में 13 हैं, ठीक है। हम्म। उसके बाद बिहार झारखंड के थोड़ा इंक्लूड कर रखा है। तो सेकंड कौन सा है? अरुणाचल ना? नहीं आंध्रा आंध्रा आंध्रा, आंध्रा विद आंध्रा। 12, अरुणाचल देख लो, वो भी बिहार में भी है ना, दिख रहा है काफी जल्दी से। अरुणाचल में तो एक भी नहीं है। अच्छा, कौन से अरुणाचल स्टेट में बिल्कुल भी नहीं है? क्या PVT पीवीटीजीज बिल्कुल नहीं है या फिर वो एसटीज नहीं है बिल्कुल भी? पीवीटीजी बिल्कुल नहीं है। पीवीटीजीज केवल 18 स्टेट में है ना, तो 10 स्टेट हाँ में वो नहीं है। हाँ, और अरुणाचल नॉर्थ प्रदेश, ईस्ट में सिर्फ मेघालय, 2 त्रिपुरा, स्टेट हैं। मिजोरम, ये जो हैं ये तो शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज हैं, तो वहां पे तो और ही कम होंगे वहां पे पीवीटीजीएस, वो तो शेड्यूल्ड हाँ ट्राइब मतलब एरियाज। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ ना तो एक मणिपुर में है, इससे पहले केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ठीक है, ये हो गया। राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट का नेम्स देख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में है, सिर्फ हाँ, एक ही है। त्रिपुरा है नहीं क्या? मणिपुर त्रिपुरा भी है। हाँ देखो त्रिपुरा रियांग, में है, आई थिंक रियांग। रियांग के बारे में अभी रिसेंटली कल परसों न्यूज़पेपर में था, कल ही था शायद न्यूज़पेपर में रियांग ये के तो बारे में। आता रहता है, बल्कि इसका ब्रू त्रिपुरा है भी ना। शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में आता है, वो मतलब ओनली स्टेट है जो उसमें, ओनली स्टेट है जिसमें पीवीटीजीज है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है ना, एएमटीएम में आता है ना वो शेड्यूल नंबर 6। हम्म। करेक्ट करेक्ट, सही बोला। एक त्रिपुरा हो गया, दूसरा मणिपुर का मोरम नागाज, ये पीवीटीजीज में नॉर्थ ईस्ट से, तो थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक ये ध्यान रखना, इसका नागाज है ना पीछे, तो ये नागालैंड में नहीं है, ठीक है। मणिपुर का मोरम नागास और त्रिपुरा में रियांग्स, इसको ब्रू भी कहते हैं, और ये न्यूज में तो रहता ही है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ ये 2 ही है ना, मणिपुर और त्रिपुरा। करेक्ट, तो ये ये पूरे अंडमान 75 निकोबार हो में 5 है, यही इसी ग्रेट पर था इसी। अंडमानी, जारवास, ओंगेज, सेंटिनेलीज और शोम्पेन्स। निकोबारीज कोई नहीं ऐसे, है, हाँ निकोबारीज। निकोबारी नहीं है, सही बोल रहा है, ठीक है। निकोबार इसका पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रहा है इसलिए। सही। नेक्स्ट पेज पे जाना है क्या, कंटिन्यू या खत्म? बस इतना ही है, 75 हो गए ना कंप्लीट यहाँ। अच्छा, बाकी क्राइटेरिया शायद मैंने कुछ हो दिया प्लान वगैरह इनके, काफी मतलब पूरा डॉक्यूमेंट ही है ये, इसी के ऊपर बेस के क्या क्या स्कीम्स है वो सब लेके गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। कोई स्पेसिफिक स्कीम्स है क्या इस पीवीटीजी? एक कमेटी थी ना, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्राइब, सारी वो पीवीटीजी से देवार। रिलेटेड, देवार कमीशन ना। ये बार, हाँ। हाँ ये बार थी, और फिर एक ही था। दिलीप सिंह भूरिया दूसरी जो बनी थी, भूरिया। ठीक है। बस मतलब इसमें ये देख लो, जो कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट प्लान है ना, ये पीवीटीज के लिए नहीं, बाकी तो छोटी मोटी चीजें देखना हो तो देख लेना, बस। एक दो स्कीम आपको आपने देखी क्या, तो नाम बता दो। इसमें अलग से कोई स्कीम नहीं है, बस ये एक मेजरली ये स्कीम थी कि एक प्रोग्राम चल रहा है कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट, तो क्या करते हैं जितनी भी सेंटर की और जो स्टेट्स की जो स्कीम्स ऑलरेडी हैं उनके लिए उनको कन्वर्ज करते हैं, ये इसके अंदर प्लान रहता है। बाकी छोटी मोटी स्कीम्स चलती रहती हैं, जैसा वो तुम्हारा वंदन योजना और वो सब। राइट, ठीक है। ये अपना हो गया। नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला क्वेश्चन रीड कर दो वही। Okay, amendment करके। So the 44th the 44th amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of Prime Minister beyond judicial review. ये तो इंदिरा जी ने किया था ना, हाँ, तो I 42 think हो गए वो। तो 44 से बहुत पहले होगा, तो सेकंड होगा। I think 39th है शायद specifically. Okay, देख लेंगे। Second, the Supreme Court of India struck down the 99th amendment to the Constitution as being violative of independence of judiciary. तो हमने पढ़ा था ना? एनजेस। Correct. करेक्ट। 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हाँ, तो बी था the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 has placed the election of President, Vice President and Prime Minister beyond the judicial review. ठीक है, वो उस टाइम आई थिंक केस चल रहा था ना, तो उस चक्कर में उन्होंने बाद में इस चीज को मतलब
पेंडिंग ही चल रहा था, वो कोर्ट में शायद सुनवाई चल रही थी और उसने चलते चलते इन्होंने 42nd लाके उसे बाहर कर दिया, ठीक है। दिस प्रोविजन वाज रिपील्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 99th Constitutional Amendment Act of 2014 has replaced the collegium system of appointing judges to the Supreme Court and High Court. ठीक है, आई थिंक ये तो पढ़ ही रखा है इसके ऊपर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। So the ninth schedule was introduced in the Constitution of India during Prime Ministership of Nehru ji, right? तो ये first amendment था। करेक्ट। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था 1951 का, नेहरू जी के अंडर आया था। empowered the state to make special provision for the advancement of socially and economically backward classes, ठीक है, आर्टिकल 15। provided for saving of laws, providing for acquisition of estates, etc. Article 31A added the ninth schedule to protect the land reforms and other laws included in it from the judicial reviews. Added 3 more grounds on restriction on freedom of speech and expression. पहला था public order, दूसरा friendly relation with foreign affairs state, and incitement to an offense. से पहले और क्या थे फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस? सिक्योरिटी या वैसा कुछ था ना, सोवरेनिटी को हार्म नहीं करनी चाहिए। मोरालिटी भी था ना, मोरालिटी इसमें मोरल डिसेंसी जैसा करके था। टोटल इसमें सबसे ज्यादा विजय जी, हाँ सॉरी, कुछ डाला जाम बोर्ड पे? नहीं फर्स्ट अमेंडमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट था, लक्ष्मीकांत से उठा के डाल दिया था कि याद रहे, सेम जो भी डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली फर्स्ट अमेंडमेंट इफ यू रिमेंबर ना, इसको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि व्हेन ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल नो ऑल दिस लीडर्स वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए दे वर वाचिंग, राइट? बट इफ यू सी फर्स्ट अमेंडमेंट ना, उसने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कुछ इश्यूज में, तो ये थोड़ा अभी भी क्रिटिसिज्म है नेहरू जी के ऊपर बिकॉज ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट। ये रिसेंटली न्यूज में भी था ये फर्स्ट अमेंडमेंट, थोड़ा देख लेंगे इसको डिटेल में। आई थिंक सेम है, सारा पढ़ लिया राइट? कुछ पेंडिंग है इसमें? हाँ, ये पढ़ लिया है। ये आई थिंक फिफ्थ वाला पॉइंट नहीं पढ़ा, ये वाला पढ़। ओके, तो फिफ्थ वाला पॉइंट है प्रोवाइडेड दैट स्टेट ट्रेडिंग एंड नेशनलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस बाय द स्टेट इज नॉट टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट टू ट्रेड और बिजनेस। तो ये क्या है? वो नेशनलाइजेशन वाला हो गया ना। आर्टिकल 19 में हम नहीं देखते, आर्टिकल 19 में हम नहीं देखते प्रोफेशन के ऊपर फ्रीडम दे रखा है। अगर स्टेट बोलता है कि भैया अगर हम रेलवेज के अंदर हमारी मोनोपोली रहेगी तो उसको वायलेटिव ना माना जाए, आर्टिकल 19। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम आउट करना। तो टोटल 5 प्रोविजन है। एक तो है लैंड रिफॉर्म्स वाला, दूसरा 3 रेस्ट्रिक्शन लगे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, तीसरा ये स्टेट का जो रेलवेज वाला जो ट्रेडिंग वगैरह है, ट्रेडिंग वाला इशू, और नेक्स्ट है प्रोवाइडेड फॉर सेविंग ऑफ लॉज, प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। तो लैंड एक्विजिशन कुछ रिलेटेड है। और एक फिफ्थ है सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आर्टिकल 15 जो लेके आए थे। ठीक है, तो एक बार 3 फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन वाले है। एक तो है पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन इन विद फॉरेन स्टेट्स, और एक है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इससे पहले 3 कौन से थे? 3 क्या? वो देखा पार्ट 1 राइट टू फ्रीडम, ठीक है, वो था
इसमें भी सब में अलग अलग है ना, 19(1) में अलग है, 19(2) में अलग है ना। ये कौन सा चैप्टर है? इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। सुनाई नहीं दे रहा है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, पॉलिटी पढ़ रहे हैं शाश्वत। हाँ बट कौन सा चैप्टर कौन सा है? फंडामेंटल राइट, ये जो देख रहे हैं वो फंडामेंटल राइट। हाँ यार इसमें आई थिंक यूनिवर्सल नहीं दिया हुआ है शायद ये भी। अच्छा ठीक है, तो सबसे, हाँ यूनिवर्सल नहीं है, सब में अलग अलग है। तो 19(1)A में है 8 ऐसी, ठीक है, तो मैं पढ़ देती हूँ। एक तो है, पहले ये बताओ कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ऐसे जानना जरूरी है क्या? इम्पोर्टेंट है वो Important रिस्ट्रिक्शन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं पढ़ देती हूँ। 19(1)A, ठीक है, उसमें है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद नेबर्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा कि क्या क्या एडेड हुआ है। एक तो है फ्रेंडली रिलेशन एडेड हुआ है, पब्लिक ऑर्डर ऐड हुआ है, और एक इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस ऐड हुआ है। 3 तो यही है। चौथा अपन ये भी समझ सकते हैं कि सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी तो हो गई, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इसमें एडेड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो रिसेंट केसेस में अपन देख सकते हैं। और एक और है डिसेंसी एंड मोरालिटी, जो किसने कहा था अपन को पहले, किसने मेंशन किया था। और लास्ट है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है। टोटल 8 हो गए ना। नेक्स्ट 19(1)B में है, 19(1)B का मैंने नहीं लिख रखा है, बट 19(3) का देख लेते हैं एक बार। मैं ये उसमें बता देता हूँ, हम्म, फ्रीडम ऑफ असेंबली है ना, तो द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ असेंबली ऑन 2 ग्राउंड्स। केवल 2 ग्राउंड दिए गए। पहला है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। ये भी 19(3) में ये 3 यही 2 है, ठीक है। तो ये 2 हैं। अभी आई थिंक तो वो मुस्लिम्स का शायद कुछ था कि वो बाहर आके वो कर रहे थे, तो उस पर इन्होंने बोला था कि राइट टू असेंबली जो है हम लोग इस चक्कर में रोक सकते हैं शायद पब्लिक ऑर्डर के नाम पे। और ठीक है। सेक्शन 144 ऑफ CRPC 1973, a magistrate can restrain an assembly or meeting of or procession if there is a risk of obstruction, annoyance or danger to human life, health और safety, ठीक है। ये है CRPC के अंदर, ठीक है। IPC के अंदर है सेक्शन 141। ये डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में। कई बार हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, इनको पता नहीं लगता। तो 144C क्या कर्फ्यू किसको बोलते हैं इसको, इसमें? CRPC 144 को। ओके, वैसे कर्फ्यू इसको भी बोल सकते हैं। 141 ऑफ इंडियन पीनल कोड एज असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, ठीक है, जो ज्यादातर हम लोग सुनते हैं। ये हो गया कि 5 और मोर पर्सन एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, टू फोर्सिबली ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, टू कमिट अ मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, टू फोर्स सम पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट, टू थ्रेटन द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल, तब वो IPC 141 लगा सकता है, ठीक है। ये और तो बहुत 144 लगाती है ना अभी कोविड टाइम करेक्ट। मेरी स्टेट में तो लगा है। हाँ, वो इसीलिए इसको थोड़ा सा अपन भी इंटरचेंजेबली यूज कर जाते हैं। कई बार पता नहीं रहता कि वो 5 या 4 वाला होता है, उसको भी अपन सेक्शन 144 समझ रहे होते हैं। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट बता दो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और और इंटीग्रिटी। sovereignty, तो 3 है इसमें, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। तो सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर तो दोनों काफी अभी तक तो अपन ने देखा है सब में है। ये मोरालिटी Morality इसलिए में ऐड है। हुआ है क्योंकि क्योंकि सेकंड वाला असेंबली है ना, हाँ और थर्ड वाला एसोसिएशन है, ठीक है। तो एसोसिएशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे थोड़ी मोरालिटी रहनी चाहिए।
हाँ मतलब ऐसा ऊट कुछ पटांग connect- एसोसिएशन नहीं बना लो आप। हम्म। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नेक्स्ट लिखा रेस्ट्रिक्शन। हम्म, हाँ रेस्ट्रिक्शन है डी और ई दोनों में, मूवमेंट और रिसाइड एंड सेटल दोनों का रेस्ट्रिक्शन है कि एसटी का जो नहीं रहता है शेड्यूल ट्राइब के एरियाज में, तो अपन वहां पे घूम नहीं सकते और वहां पे रिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये तो अपन को पता ही है। इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक भी है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। That वहाँ की inner line permit, right? करेक्ट। हाँ, और इसका और एग्जांपल हो सकता है। इसमें वो भी आ सकता है वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज और जो नेशनल पार्क का कोर एरियाज होता है ना, तो वहां पर नहीं जा सकते, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के अंडर, और एसटी वाले में आईएलपी को कोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वाला। एक सेकंड स्टॉप करो। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज टू डिमेंशन विच इंटरनल यानी राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री एंड एक्सटर्नल राइट टू मूव आउटसाइड ऑफ द कंट्री। तो आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ फर्स्ट डिमेंशन को प्रोटेक्ट करता है, दूसरे डिमेंशन को नहीं प्रोटेक्ट करता। ये एक डिस्टिंक्शन देख लेना। दूसरे डिमेंशन को कवर अप करने के लिए हमने आर्टिकल 21 में उसे जगह दी है, ठीक है। मेनका गांधी का जो केस हुआ था, जो सेकंड वाली कंडीशन थी, है ना, करेक्ट। और वो आर्टिकल 21 से रिलेटेड ही था, करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन वाला। इसमें रेस्ट्रिक्शन है इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ठीक है, एंड पार्शियल और फुल एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन्स इन अ सेक्टर। तो ट्रेड ऑक्यूपेशन है तो मतलब रेलवेज वगैरह जो पहले था, एटम बॉम्ब और ये सब, इसमें सिटीजन्स के लिए कुछ ही लोगों के लिए था, और जनरल पब्लिक तो अपन को पता ही है, ठीक है। मतलब ऐसा ट्रेड वो नहीं होगा जो कि इमोरल हो, और दूसरा स्टेट जो है वो प्रोहिबिट कर सकता है, ठीक है, जो भी हमने देखा था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चलाए थे वो। और लास्ट है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। तो ठीक है, the states can impose reasonable restriction on the exercise of rights on two grounds: interest of general public and the protection of STs, ठीक है। वही सेम जो हमने मूवमेंट के अंदर देखा था, वही सेम चीज इसमें भी है, रेजिडेंस। ट्रेड वाले का बता दो क्या था, ट्रेड वाले का लास्ट वाले का, उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस थे एग्जैक्ट? जनरल पब्लिक और पार्शियल और फुल एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन। इसमें देख लो एक बार लक्ष्मी गांधी, मतलब जैसा आप स्टेट बोल सकता है कि रेलवे को हम ही चलाएंगे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा प्रोफेशन में मैं शायद ट्रेन बनाना चाहता था या ट्रेन का वो करना चाहता था, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये गवर्नमेंट में मतलब मेरा राइट टू प्रोफेशन रोक दिया है, ठीक है। तो इसलिए स्टेट को पूरी तरीके से मोनोपोली है इसके अंदर, तो वो जिस भी ट्रेड में चाहे वहां पे जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए उस चीज को मोनोपोलाइज कर सकती है, ठीक है। तो पहले वाले में 8 थे और सेकंड वाले में 3 थे कि 2 थे? मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड सोवरेनिटी इंटीग्रिटी और मोरालिटी डिसेंसी 3 थे ना? हाँ, सेकंड में 2 ही थे, 2 थे सोवरेनिटी और थर्ड में। पब्लिक। हाँ ठीक है। थर्ड में थर्ड वाले में 3 थे जिसमें मोरालिटी एडेड हो गई थी ठीक क्योंकि एसोसिएशन से रिलेटेड था, ठीक है। ठीक है। चौथे फोर्थ और में, फिफ्थ में सेम थे। हाँ, फोर्थ फिफ्थ में सेम थे, एसटी और जनरल पब्लिक का हाँ, इंटरेस्ट, ठीक। और सिक्स सिक्स वाले वाले में तो में जनरल पब्लिक और एटम बॉम्ब, ये सब याद रख लेना, हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं पढ़ लेता हूँ। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना पूरा जो हेट क्राइम, हेट स्पीच, ऑल दोस थिंग्स वन में आता है ना, 1A जो मोरालिटी और डिसेंसी को हिट करता है, राइट? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, Which of the following constitutional amendments are related to raising the number of members of Lok Sabha be elected from the state? 6th and 22nd, 7th and 31st, 13th and 38th, and 11th and 44th.
to raising the number of members of Lok Sabha be elected from state. किसी को आइडिया है क्या इस पे? नहीं आई थिंक कोई 7. गेस मुझे अच्छा भी 7th seven. कह रहा है रीऑर्गेनाइजेशन को लेके। हाँ हाँ सही गेस लगा रहा है। मैं हाँ बोल दो। कौन सा है? मैं ना मौका ना मिलेगा। ना रहना। ठीक है थर्ड का बी है। लग गया। सही है 2 मार्क मिल गए। The 7th Constitutional Amendment Act of 1956 capped the number of elected seats at 520. Okay. The 500 from the Indian state and 20 from the UT. फिर 31st Constitutional Amendment Act of 1972 increased the number of Lok Sabha seats to 545. ठीक है. At present, the maximum strength of the Lok Sabha has been fixed at 552. ठीक है. 7th में कुछ और भी इम्पोर्टेंट था, वो भी बोल दो। वो गवर्नर वाला था ना, वन और मोर स्टेट का एक गवर्नर, वन और मोर स्टेट का गवर्नर हो सकता है। नहीं वो 2 और मोर स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट है वो। क्या? कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स है वो, गवर्नर नहीं है शायद इसमें। नहीं गवर्नर था। गवर्नर भी है, गवर्नर है। हाँ ओके पता नहीं यार ये इसमें। स्टार्टिंग के कुछ अमेंडमेंट्स एक हो रहा है। बोलना वापस। हेलो। हाँ बोलो। ये स्टार्टिंग के कुछ अमेंडमेंट्स जरूरी है क्या? तो 1 to 10th कर लें। अच्छा नहीं तो लक्ष्मीकांत के पीछे जो अमेंडमेंट है ना इम्पोर्टेंट, वो सब लिखे हुए हैं। ठीक है, उसको अभी पहले अपन ये वाला सारा कंप्लीट कर ले, फिर अगर टाइम बचता तो अपन उसको देख लें। ठीक है। ठीक है। वो गवर्नर वाला श्योर है क्या? 7th लक्ष्मीकांत हाँ पक्का पक्का लिख ले लो सब लोग। सही है। नेक्स्ट पर Which of the following amendments to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration by the Council of Ministers? 39th, 40, 42nd, 44th. 44 ही होगा। 44 पे लॉक किया जाए। ठीक है देखिए तो। रिकंसिडरेशन। ठीक है भाई आंसर देख लिया था क्या? नहीं रिकंसिडरेशन तो हमेशा वही आता है 44 में वर्ड। ठीक है सही है जियो खूब जियो। तो पढ़ लेता हूँ 44th। नहीं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये काफी बार करा हुआ है हमने। नेक्स्ट पे आ जाओ। ठीक है 86th Constitutional Amendment deals with the continuation of reservation for backward classes in government employment, free and compulsory education for all children between age 6 and 14 years, reservation of 30% post for women in government recruitment, and allocation of more number of parliamentary seats in बी है ना? हाँ सॉल्व कीजिए। बी है ना? ठीक है वो हाँ बी है। 21A और अपना फंडामेंटल ड्यूटी में है। ठीक है फंडामेंटल लक्ष्मीकांत रात को सोते वक्त पढ़ते हो क्या? कहानी की तरह सब रट लिए हो। ठीक है। Change the subject matter of Article 45 in the Directive Principle. ठीक है। It now reads that the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. ठीक है। और अभी एनईपी के अंदर टारगेट किया उन्होंने कि प्री स्कूलिंग ईयर्स जो होते हैं 3 to 6 years उसको टारगेट करेंगे। ठीक है। ये 45 वो क्या नाम बोलते हैं, सॉरी चेंज किया था। एक तो 21A चेंज किया था, आर्टिकल 45 चेंज किया था, और एक एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी 51A। यहाँ पे हमने देखा था इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ पेरेंट और अ गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years। ठीक है। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ऑफ 2002। 3 जगह चेंज आया था, 21A, 45 एंड 51A। 51A का कौन सा था क्लॉज? क्या यार वो क्लॉज तो याद नहीं, किसी को ख्याल है ये आखिरी किया था क्या?
हाँ लास्ट के था। हाँ तो वही था ठीक है 11th हाँ, नंबर होगा ना। सही बोल रहा है सही दिमाग लाए तो देख लेते हैं एक बार। हाँ सही बोल रहा है, के ही था। हाँ सही है। सही है सही है। भाई को ना अच्छे लक्ष्मीकांत बुलाते हैं, सब पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। Match list 1 with list 2. So the Constitution 69th Amendment और क्या है 90 ठीक है, इसको ऐसे द कॉन्स्टिट्यूशन का 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से रिलेटेड था? वही है ना दिल्ली वाला। यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है ना। हाँ यूनियन टेरिटरी उसका तो आर्टिकल बताओ। ISG 39 ए क्या एक 39 ए है, एक्सेप्टिंग द शाश्वत थोड़ा नॉइज आ रहा है, एक बार बंद कर ले माइक को। ठीक है Accepting the recommendations of the 10th Finance Commission accorded the status of Delhi. Okay, ये रहा इसका. Then second was the constitution, 75th Constitutional Amendment Act लाया है शायद. तो इस ये किसके लिए था 75th Constitutional Amendment Act? आई थिंक ट्राइब्यूनल्स के लिए था। करेक्ट। है इसमें कोई? नींद तो नहीं आ रही है हाँ, अभी वो ट्राई- न्यूज़ पे था ये, वो मॉडल टेनेंट एक्ट न्यूज़ पे चल रहा था ना, तो वो भी है सेम ट्रिब्यूनल। अच्छा, स्टेट लेवल रेंट ट्राइब्यूनल. मॉडल next was- टेनेंट एक्ट क्या है? अभी रिसेंटली आया था ना वो मतलब ड्राफ्ट भेजे है, तो उसके बहुत सारे रिकमेंडेशन है। जैसे 2 महीने का सीन रहता है, मतलब घर पे छोड़ने के पहले आपको रिटर्न देना होगा, उसमें वर्बल एग्रीमेंट मनागा, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करारा देके, मतलब इलीगल है। आपको ई रिकॉर्ड या फिर पेपर के द्वारा लिखित होना चाहिए। और क्या बोलते हो लैंड हाँ लैंडलॉर्ड आता है तो उसके पहले उसको 24 घंटे की मोहलत देनी होती है, मतलब अगर प्रेमिसेस में आता है। सबलेटिंग अलाउ नहीं है, अगर अलाउ है तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान है। तो यही परसों शायद था न्यूज में। सबलेटिंग अलाउड है क्या? सबलेटिंग अलाउ है, बस उसके कुछ कंडीशन है, बस वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, देखना पड़ेगा कोई पेपर। सबलेटिंग तो आई थिंक अलाउड है उसमें. हाँ अलाउड है, उसका कुछ क्लॉज है कुछ। Then next is 88th Constitutional Amendment Act 2000. 80th ना 80? अरे सॉरी, ये तो अभी पढ़ाई है, ठीक है। 80th है मान ये जाने किसके लिए था? वही फाइनेंस कमीशन है शायद। फाइनेंस कमीशन तो ये वाला है ना, दिल्ली. ये जो लिखा है 3 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, इसमें तो 73rd 74 होगा ना। वो तो ऑप्शन में नहीं है भाई, 75th है। ये 80th वाला सी है, C4 है। C4 है। 5 ऑप्शन दिए होंगे राइट में लग रहा है मुझे। हाँ अरे ये नीचे वाला। ये अच्छा, 5 नहीं पाँच दिए, जो थर्ड वाला है ना वो जो फोर्थ कमीशन था नहीं पूरा। सही कह रहे हैं, 5 दिए थे, ये देख B5 है यहाँ. हाँ 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 तो जिसमें 3 नहीं होगा वो सही आंसर होगा, तो देख लीजिएगा उसी हिसाब से भाई। ये वैसे भी डाउट लग रहा है। डी से आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं. 69th वाला दिल्ली के लिए था. 75th वाला ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्राइब्यूनल एंड एजुडिकेशन ऑफ मैटर विद रिस्पेक्ट टू रेंट. 80th था, वो था ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. दिस वाज एनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन. और फिर आया 83rd था, प्रोवाइडेड दैट नो रिजर्वेशन in panchayat need to be made for SCs in Arunachal Pradesh. Okay. I think शायद उधर ये SCs population है ही नहीं, इसलिए ये लिखा भी आ गया. State is पूरा tribal, there are no SCs, तो उधर ये SCs वाला जो है reservation वो हटा दिया था. फिर next is 69 का ये तो सेम सी वापस.
नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. The ये seven अरुणाचल वाला जो था, तो अगर यहाँ पे चेंज कर दे तो 371 में कुछ चेंजेस होगा क्या, या ये सिर्फ नॉर्मल वही रहता है? ये तो उसके उसमें हो गया ना, जो हम पंचायत वाला एक्ट वो पंचायत वाला लॉ पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल उनमें चेंज किया है. ओके, ठीक। 73rd Constitution Amendment of 1992 refers to generation of gainful employment for the unemployed and the underemployment men and women in the rural areas, generation of employees for the able-bodied adults who are in need of and desirous of work during the less क्या बोलते हैं, less लिखा है, क्या लिखा है, agriculture season, laying the foundation of strong, vibrant Panchayati Raj institution and guarantee of act to life, liberty, security of person, equality before law and equal protection without discrimination. वही तो होगा ना पंचायत वाला, 73rd है ना. बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, तो फर्स्ट बताओ. फर्स्ट वाला गेनफुल एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज, मनरेगा क्या है क्या? अमेंडमेंट किसी को आइडिया है? वो अमेंडमेंट नहीं है शायद. अमेंडमेंट नहीं लग रहा है कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है शायद. वो एक्ट होगा. हाँ, देख लीजिए थोड़ा. आई थिंक सी होगा, बाकी तो पता नहीं क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 7. नहीं, आंसर तो seven. सी है, बाकी ऑप्शन देख लो. अच्छा, यहाँ पे कुछ दिया हुआ भी नहीं है उसके लिए. ठीक है. 243 से 243 ओ है, ठीक है. ठीक है. देन आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, भैया जी थोड़ा स्क्रॉल कीजिए. Consider the following statement: an amendment to the Constitution of India can be initiated by the Lok Sabha, Rajya Sabha, President, Legislature. नीचे क्वेश्चन क्या था? Amendment to the Constitution can be initiated by लोकसभा राज्यसभा, राइट? बहुत ना 1 और 2 लोक सभा है ना. नहीं, राज्यसभा भी होता है. 1 and 2. लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी. नहीं सॉरी, स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया लिखा है. हाँ, ऑफ इंडिया लिखा है. They can only pass the resolution, वो जो होता है ना. जो प्रेसिडेंट को लेकर डाउट हो रहा है. रश्मि नहीं होगा. डी होगा, 1 2 है ना ऑप्शन. 1 2 होगा. हाँ 1 2. हाँ 1 2 हो गया ना, हम देखे नहीं थे वो वाला, देख लीजिएगा. हाँ डी है. Article 368 of the Constitution states that an amendment of the Constitution can be initiated only by the introduction of bill for the purpose of either house of the Parliament and not in the state legislature. Okay. इसके अंदर एक चीज था कि स्टेट अगर एमएलसीज बनाना हो ना तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास कर सकता है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, और मतलब उसके लिए सिर्फ वो एक पार्लियामेंट को एक रेजोल्यूशन दे सकता है कि हमारे यहाँ बना दो, बस, बाकी और कुछ नहीं कर सकता. हाँ, सही है. Consider the following statements: an amendment to the Constitution can be initiated by the introduction of bill in the Lok Sabha only. ये तो false होगा क्योंकि राज्यसभा भी हो सकता है ना. ठीक है. और if such amendment seeks to make changes in the federal character of the Constitution, the amendment also requires to be भाई जी थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ratified by the legislature of all the states of India. कल तो नहीं होता. इतना होता फिर सुनाया जा रहा है. More than half. मोर देन हाफ. करेक्ट. हाँ होगा. ये सही है ना, तो मतलब सेकंड वाला. क्यों ऑल नहीं, बोला नहीं, है? तो ऑल बोल रहे हैं ना, अच्छा हाँ, मोर देन हाफ होता है. ठीक है. 50%.
9 का D है Article 368 Constitution provide for two types of amendment: special majority of the Parliament and also through ratification of half of the states by simple majority. But some other article provide for amendment of certain provisions of the Constitution by a simple majority of Parliament. That is, a majority of all members of each house present and voting. Notably, these amendments are not deemed to be amendments of the Constitution for the purpose of Article 368. हमने ये बात किया था कि जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज को चेंज करना है, और हमने बात किया था जैसा और क्या क्या था जो जिसके अंदर आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा. हेलो. आर्टिकल 2 और 3 के जो अंदर स्टेट का अबॉलिशन है वो भी शायद नहीं होता ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. एरिया और टेरिटरी वाला. हाँ सही बोल रहे हो, वो भी नहीं होता. और फिर फेडरल प्रोविजंस को अगर चेंज करता है तो इट शुड बी रैटिफाइड बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट. अगर जैसा प्रेसिडेंट का कोई इलेक्शन हो गया या फिर राज्यसभा को लेकर कुछ हो गया तो उन सब चीजों को अमेंड करेगा तो फिर हाफ ऑफ द स्टेट से भी रैटिफिकेशन लेना पड़ेगा. आई थिंक सबसे रिसेंट इसमें जीएसटी था. जीएसटी के अंदर उन्होंने हाफ ऑफ द स्टेट से रैटिफिकेशन लिया था. ओके, इसके अंदर नेक्स्ट पे चलते हैं. नंबर ऐसे 10. क्वेश्चन प्री में नहीं आता है, कट ऑफ बढ़ जाएगा. नहीं अभी नहीं आता है, ये 2002 में शायद आया था. 13 में आया है. 13 ठीक है चांसेस है भाई. ठीक है. The Constitution 73rd Amendment Act 1992, which aims at promoting Panchayati Raj institution in the country, provides for which of the following: Constitution of District Planning Committees, State Election Commission to conduct all Panchayat election, Establishment of State Finance Act. ठीक है, ये 3 है ना. आई थिंक तीनों ही है इसमें. तीनों सही है. वो तीनों सही है. थर्ड वाला दिखा देता हूँ, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है. थर्ड वाला शायद नहीं है. स्टेट फाइनेंस कमीशन है. मे भी है. राइट. दोनों पैकेज है ना, दोनों साथ में होगा. 24th वाले में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 73rd में है, 74th में है. 74th तो ये है ना हमारा म्युनिसिपल वाला. 74th में होनी चाहिए ना. करेक्ट बोल रहा है वो. ये इसमें अपना गलत हो गया. इसका आंसर सी है, 1 नहीं था. ठीक है. तो द 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 granted constitutional status and protection to Panchayati Raj institution. For this purpose, the amendment added a new Part 9 from Article 243 to 243O in the Part 9 schedule containing 29 functional items of panchayats. 243K of the Constitution of India state that as superintendence, direction, control of preparation of electoral rolls and conduct of all elections to be panchayat shall be vested in the State Election Commission. यहाँ पे आ गया. It consists of a state election commissioner to be appointed by the governor. The legislature may make provision with respect to all matters relating to the elections of panchayat. Okay. I think देखो इसमें शायद ये था कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उसका रिमूवल शायद प्रेसिडेंट ही कर सकता है. ये शायद पिक्यूलियर चीज था इसमें. Next, 243I of the Constitution of India states that governor of the state shall, after every 5 years, constitute a finance commission to review the financial position of panchayat. ठीक है. It shall make recommendations to the governor. The principles that should govern distribution of between the state and the panchayat of the net proceeds of taxes, duties, tolls, fees levied by the state. ठीक है. ये जो सेम काम वो करता है, क्या नाम बोलते हैं हमारा फाइनेंस कमीशन. Next is determination of taxes, duties, tolls and fees that may be assigned to the panchayat. The grants in aid to the panchayat from the consolidated fund of of the state. The measures needed to improve the financial position of the panchayat. Next, any other matter referred to it by the governor in the interest of sound finance of the panchayat, जिसको हमारा फाइनेंस कमीशन में टर्म ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. The state legislature may provide for the composition of commission, the required qualification of its member, and the manner of their selection. The governor shall place the recommendation of the commission along with the action taken
on the report before the state legislature. The Central Finance Commission shall also suggest the measure needed to augment the consolidated fund of the state to supplement resources. No provision has been made by the 73rd Constitutional Amendment Act to constitute a district planning committee. Oh, तो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का कहाँ से आता है, कहाँ पे है इसका प्रोविजन? यार मुझे लगा था कि म्यूनिसिपैलिटी वाला जो प्रोविजन है वो 74th में है, सही तो कह और रहा ये है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी म्यूनिसिपैलिटी में आता है, इसलिए मैंने बोला था। तो ये हो सकता है शायद ना हो, लेकिन ये तो श्योर था कि 73rd में नहीं होगा, क्योंकि वो पंचायत है, पंचायत के लिए। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसको। देख लेते हैं ना, चलो। स्टेट पे आ गए, यूटीज पे आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट। पंचायती में नहीं था, म्युनिसिपैलिटी में देखते हैं। हाँ वही है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी सारी वही में आती हैं। आर्टिकल देख ले क्या एक बार इन दोनों एक्ट के? हाँ, इसको एक बार देख लेता, फिर देखता हूँ उसको। क्वालिफिकेशन, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमिश्नर, district planning committee. Every state shall constitute at district level a district planning committee to consolidate the plans prepared by the panchayat and the municipalities in the district. Okay, and to prepare a draft plan for the district as a whole. The legislature may make provision with respect to the following: composition of such committees, the manner of election of the members of such committees, the function of such committee in relation to the district planning, and the manner of election of chairperson of such committee. Okay. The Act lays down that 3/4 of the member of a district planning committee should be elected by the elected members of the district panchayat and the municipality from amongst its member. Okay. All right. 43ZD है आर्टिकल। Read है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का के बाद एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी भी है। एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल हैव अ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट प्लान। ठीक है, और द कंपोजिशन ऑफ सच कमेटी मतलब लेजिस्लेचर डिफाइन कर सकता है। द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ सच कमिटीज, रिप्रेजेंटेशन इन सच कमिटीज, फंक्शन ऑफ सच कमिटी इन रिलेशन टू, ठीक है, वही सेम चीज जो ऊपर देखी थी। ऑलराइट, मेट्रोपॉलिटन सिटी और ये सब जो है ना, तो उसमें पॉपुलेशन का क्राइटेरिया क्या रहता है? 10 लाख होता है ना? नहीं, एक बार चेक कर लेना, इसी में है, लास्ट में दिया हुआ है, इसी बुक में लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है, लास्ट में दिया ड्राफ्ट प्लान, ठीक है, हुआ। यही दिया हुआ था क्या डेफिनेशन उसका? वो एक टेबल में पुराने वाले लक्ष्मीकांत में तो दे रखी है यार। वो शायद आई स्टेट थिंक वो 10 लाख ही 10 है। 10 लाख छोटी वाली के लिए था, उसके बाद सिटीज वगैरह के लिए तो करोड़ टाइप में कुछ नहीं था। नॉट श्योर, एक बार देख ही लेते हैं। हाँ ये रहा ना, सॉरी, कैंटोनमेंट बोर्ड है ये तो। इसमें ये लिखा है, मेट्रोपॉलिटन area means an area having a population of 10 lakh or more in one or more districts and consisting of 2 or more municipalities or panchayats or other contiguous areas. 10 लाख ही होता है उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, आर्टिकल्स देखने थे ना, आर्टिकल्स तो काफी सारे हैं यार इसमें। इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो 243 से शुरू होता है, और उससे पहले हमने देखा था ओ तक, उसके अंदर था ग्राम पंचायत के अंदर, ठीक है। एक डिस्टिंक्शन मिल जाएगा कि कौन सा किसके अंदर आता होगा। फिर क्यू के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज,
आर के अंदर कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, ये तो फालतू ही है। टी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबरशिप, डी के अंदर है। वो जो 243 क्राइटेरिया हम बोल रहे थे ना डिफरेंशिएशन वाला, तो वो क्यू में है। ओके, क्यू में आता है वो। अच्छा, क्यू में वो 3 डिवाइड कर दिया, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसा डिवीजन क्यू में है। म्यूनिसिपल पहले क्या आता है? स्मॉल से स्टार्ट होता है, स्मॉल इज नगर पंचायत, ओके, वो ट्रांजिशनल टाइप है, एंड देन म्युनिसिपल काउंसिल, दैट इज स्मॉल अर्बन एरिया, एंड देन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट इज लार्ज अर्बन एरिया। वो मैंने पढ़ा था कि बॉम्बे में जब बारिश आती है तब न्यूज वाले बोलते हैं कि बॉम्बे का जो म्युनिसिपल बजट होता है वो 7 स्टेट जो होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न, उनके सब मिला के जितना बॉम्बे एक अकेले का ही उतना होता है। यस यस करेक्ट, बिग है, बिग वन। बिग वन। ठीक है। उसके बाद 243 आई फाइनेंस कमीशन के लिए है। और ठीक है, बाकी तो हाँ, एक ये थोड़ा देख लो, ये थोड़ा डिस्टिंक्टिव है। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है, ये लास्ट का आर्टिकल है 243 ZG के अंदर, ठीक है, ये सब है। और बाकी ZE प्लानिंग, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, और 243 ZD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, जो अभी हम क्वेश्चन रेफर कर रहे थे। वाई वाला को याद कर लो, फीमेल का सिंबल नहीं होता फाइनेंस का। वही वाला लक्ष्मी समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट वाई या क्वेश्चन देखते हैं। जेड? ठीक है। Under which of the following constitution amendment 4 languages added to the under the 8th schedule of the constitution, thereby raising the number to 22? 19th amendment, 91st, 92nd, 93rd. 92nd था इसमें। मैं BDMS ऐड हो गया एंड में BDMS 11th का 92nd Constitutional Amendment Act of 2003 included 4 more languages in the 8th schedule to the Constitution of India. They were Bodo, Dogri and Santhali, जो भाई ने बताया अभी, ठीक है। With this, the total number of language constitutionally recognized language increased to 22. Okay. All right. 91st कौन सा है डिफेक्शन और 93rd? 52 सेकंड है शायद डिफेक्शन ना। डिफेक्शन 2 बार हुआ है ना, 2 बार हुआ है वो 91 दोनों। 91st वो एयर से डिस्कस किया था ना, 15% लिमिट वाला। हाँ ये है 91st सही है। फोरम। ये कौन सा एक बार amendment था ना? 52nd अमेंडमेंट 1983 में आया था और 55 ये 91st में 2003 में आया था। ठीक है। सही है। 1/3 वाला 2/3 वाला था ना, स्प्लिट मर्जर का था जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें 90। ये जो लैंग्वेज वाला लैंग्वेज चेक देख लो, लैंग्वेज क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं यार। इससे पहले कौन से हुए थे 92nd के पहले भी? इससे पहले शायद 70 कौन से 1 है, 71 है ना, 71 लिखा है और उससे पहले 21 है। 21 था। तो 21, 71 और 21 और 71 को ऐड करो 90 बन जाता था, ठीक है। अरे तुम लिख दिया तुमने, ओके ओके। इनमें कितनी कितनी ऐड हुई थी, आप पता है क्या? 21 में सिंधी ऐड हुई थी, 71 में KMN राष्ट्रगान खोल दें क्या? कोंकणी ऐड हुई थी। अरे ठीक है यार, वो इतना वो याद रखने की जरूरत नहीं है। डेप्थ में लास्ट वाला देख लो कि हाँ यहाँ तक हुआ था और इतनी लैंग्वेज है, ये शेड्यूल है, ठीक है। कैसे मुश्किल है नेपाली होगा कि मैन देख। अभी किसी का डिमांड चल रहा है क्या न्यूज़ में? लैंग्वेज को रहता है ये लोग। बोडो का था आई थिंक, नहीं बोडो का तो स्टेट को लेके था, वो एरिया को लेकर था ना। ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं. What are the following after there? वाला Which of the following amendment seeks that the size of council of minister at the center and in a state must not exceed 15%. पढ़ने की जरूरत है, ये तो अभी पता है ना. हाँ मत पढ़ो. ठीक है, धन्यवाद. तो नीचे स्क्रॉल कीजिए. What does the पिछले था ये ऊपर गया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल ने कोऑपरेटिव क्या था? Cooperative था. I think. हाँ कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव था. ठीक है पढ़ लो आप. पढ़. What does 104th Constitution Amendment Bill related to? Abolition of legislative council in certain state, introduction of dual citizen for persons of India origin living outside. B तो कतई नहीं होगा शायद. C is providing quota to socially and educationally backward class in private education institution and providing quota for religious minorities in services under the central government. C है क्या? क्वेश्चन होगा ना उस समय बिल वाला, तभी आया होगा ये सब. C है क्या? देखिए तो B तो नहीं लग रहा है मुझे. ये वो तू EWS से देख रहा है क्या? हाँ उसी के नजरिए से. ये बिल है. ये बिल है. हाँ तो अगर बिल है ना तो वो 126वां बिल है वो EWS का. तो वो काफी आगे है उसके अमेंडमेंट से. ठीक है, इसका देख लेते हैं अपन. ओके 12th का A है. सॉरी शाश्वत माइक से नॉइज आ रहा है यार. ऑफ कर ले. थैंक्स. 13 का C था. द 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल empowered the state to make special provision for socially and economically backward classes or the scheduled tribes in educational institution including the private education except minority educational institution. This amendment was enacted to nullify the Supreme Court judgment in the Inamdar case 2005, where the apex court ruled that the state cannot impose its reservation policy on minority and non-minority unaided private colleges, including professional colleges. The court declared that the reservation in the private unaided educational institution was unconstitutional. This became the 93rd Constitutional Amendment Act of 2005. ये फंडामेंटल राइट में कहाँ था ये इसका एड वाला इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी में एडुकेशन में है ना. 25 तो नहीं था, 26 भी नहीं था. आई थिंक शायद 27 या 28 था. 28 था फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस रहा 28 शायद. क्या आई थिंक अटेंडेंस में ना 28 था. 28 मतलब फ्रीडम फ्रॉम मतलब अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट एडेड. सही कह रहा है ना. ठीक है. हाँ तो बाद में ये 93rd से ले आए थे और इन्होंने प्राइवेट्स के ऊपर भी आई थिंक इस चीज को डाल दिया था. ठीक है. ये सब था, ये देख लिया हमने. क्वेश्चन नंबर 14. The Constitution 99th Amendment Act related to empowering the center to levy and appropriate service tax, constitution of the National Judicial Commission, readjustment of electoral constituency on the basis of population census 2001 and demarcation of new boundaries between states. ये बता दो फटाफट. 99 सबको पता है. चलो ठीक है. नेक्स्ट. वैसे और जो बाकी आए थे वो कर लो, पूछ लो. और क्या है जो 3 बचे हैं? 100 बता दे.
सेंचुरी किस पे लगी थी? यही बाउंड्री वाला। हाँ, Hmm. और 101 101 GST ना? GST, 102 NCBC, 103 EWS. EWS और 104 Anglo Indian. करेक्ट, सही है। Then at the 9th schedule to the Constitution, Indian Constitution was added by First Amendment, 9th Amendment, 8th Amendment, 42nd. चलो कितनी बार पढ़ोगे? पता शाश्वत कितने? Almost double, 2 times they've asked ना 9th schedule. हाँ, लगातार वो भी शायद 19 और 20 में भी शायद, अच्छा ये भी आया था ना, 19 में भी 19 में पूछा था। हुआ। राइट, तो काफी इंपॉर्टेंट है यार, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में मिल ही जाता है 9th शेड्यूल, मल्टीपल स्टेटमेंट में भी मिल जाता है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलराइट, चलते हैं अगला क्या था। लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, Local self-government can be best explained as an exercise in federalism, democratic decentralization, administrative delegation, and direct democracy. शायद B होगा या हाँ बी होगा और क्या? decentralization. ठीक है। With the reference to the Gram Nyaya Act, which of the following are correct? As per Act, Gram Nyayalas can hear only civil cases and not criminal cases. The Act allows local social activists as mediator or reconciliations. फर्स्ट वाला सही लग रहा है। नहीं गलत ये पढ़ के हम लोग। क्वेश्चन कर चुके हैं ये वाला। हाँ नेक्स्ट चलो नेक्स्ट। हाँ ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। शाश्वत तेरा शायद माइक में काफी नॉइज आ रहा है यार, कोई और पढ़ लो इसको। ठीक है ठीक है। Okay, third question. Consider the following statements. The minimum age prescribed for any person to be a member of panchayat is 25. So 21 था। 21 था, ठीक है, wrong। 21. A panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period. हाँ यही होता है ना। सही है, हाँ यही होता है। Correct. ये दिया नहीं है लक्ष्मीकांत, दिया नहीं है, ये कहीं किताब में दिया है उसमें पेबर एक्ट में शायद। ठीक है, आई थिंक लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है यार ये। हाँ दिया बेसिकली दिया होगा। दिया है, हाँ। थर्ड का ठीक है, थर्ड का बी था, तो हाँ कोई पढ़ेगा एक्सप्लेनेशन? ये जो स्टेटमेंट है ना, पहला स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से 2020 प्रीलिम्स में कुछ उन्होंने खेल खेला था, याद है किसी को? 2020 का क्वेश्चन 21 ईयर का था कुछ कि ये उससे नीचे होगा तो फिर अलाउड नहीं होगा, है ना, ऐसा ही था ना। आई थिंक संजय फॉरगॉट टू टेल कि जो हम पीडीएफ देख रहे हैं ना, ये 2020 का क्वेश्चन इसमें नहीं है शायद, राइट? 19 का अभी नहीं है सर, 19 का है ना। 19 के हैं, 19 के हैं, 19 के हाँ, काफी अलग से क्वेश्चन। पेपर देख लेंगे ना। हाँ तो उसको अलग से एक बार कंप्लीट करके मुरनाल के वेबसाइट में वो देखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। सेकंड वाला पढ़ ले। सॉरी, हाँ ये तो हो गया ना, इसका आंसर देखना था अपने को। तो थर्ड का बी था, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत एक्सेट्रा, एवरी पंचायत अनलेस सूनर dissolved under any law for the time being in force shall continue for a period of 5 years from the date for its first appointment and no longer। ठीक है, ये चीज जो हमने डिस्कस किया अभी। An election to constitute a panchayat shall be completed before the expiry of its duration specified in clause 1 before the expiration of a period of 6 months from the dates of its dissolution। यानी अगर सिर्फ 6 मंथ बचे हैं या उससे कम बचे हैं तो फिर इलेक्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज कराने हैं। Provided where the remainder of the period for which the dissolved panchayat would have continued is less than 6 months, ठीक है, it shall not be necessary to hold election। वही चीज, a panchayat constituted upon the dissolution of panchayat before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for the dissolved panchayat would have continued under clause। वही चीज, और बाकी एज 21 था, देख लिया हमने। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकेंड, सबकी एज एक बार बता दें क्या 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 है? बताओ। तो शाश्वत की 22 साल है। सॉरी
हम हैप्पी बर्थडे बोला, मैं आज ही पैदा हुआ हूँ। अरे ये वाली एज नहीं, पंचायत। पंचायत में आई थिंक पता नहीं, 25 शायद है। अरे यार अभी क्वेश्चन देखा तो है, ये और क्या देखा लिखा ही होगा? है। हाँ बाकी की क्या कर रहा था? ठीक है, उसका डिस्कस कर लेते हैं। एमपी के लिए कितना है? 25। 35 नहीं नहीं, सॉरी 25 हाँ हाँ, मेरे कॉलेज से एक सीनियर है। ठीक है सॉरी। 25 है। एमएलए के लिए कितना है? दोनों के लिए 25 25 है। ठीक है, और प्रेसिडेंट के लिए? 35। एमपी 35 राज्यसभा का होगा तो उसके लिए सर 30 है ना, राज्यसभा के लिए कितना है? अच्छा, नहीं दोनों के लिए सेम है ना, 30 की। नहीं चेंज था राज्यसभा की ना, 30 था वही ना। मैं कह रहा हूँ ना, एमपी का राज्यसभा का होगा तो उसके लिए 30 है। लोकसभा की कम हाँ। होती हाँ, हाँ। लोकसभा की कम होती है, राज्यसभा की ज्यादा होती है। आई थिंक पर देख लेते हैं कितना था। पार्लियामेंट कंपोजिशन, सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू राज्यसभा। लोकसभा की है 25, राज्यसभा की है 30, जज की नो मिनिमम, क्योंकि उनको ऑलरेडी 10 साल बनना पड़ता है पहले एडवोकेट ऐसा कुछ है। पंचायत की है 21। अरे मेरे कॉलेज से मेरी एक सीनियर है, वो अभी एमपी है। ठीक है, चंद्रानी मुर्मू, मैकेनिकल ब्रांच। आई थिंक यंगेस्ट थी ना वो, यंगेस्ट थी ना वो। हाँ, कॉलेज में तो हमने कभी उसको देखा नहीं है, बट जब एमपी बन गई तो भाई पोस्टर लगवा दिए। ठीक है, और राइट नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 35 की थी। प्रेसिडेंट की थी ना? हाँ। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ दो यार। The fundamental object of Panchayati Raj system is to ensure which of the following? First, participation in the development. Political accountability. Third, democratic decentralization. Fourth, financial mobilization. सारे सही लगे। पंचायती हाँ, सारे सही लग रहे हैं। फिफ्थ का रिपोर्ट का डी लग रहे हैं। ठीक है, सब नहीं, वो कुछ कैच है उसमें, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। हाँ भाई, अकाउंटेबिलिटी क्यों होगी इसमें? करेक्ट। पॉलिटिकल ग्राम सभा में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा ना? ग्राम सभा में नहीं होती पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी? यार, बट वो देंगे, द पावर्स डिसेंट्रलाइज होगी ठीक है। तो जब ऊपर क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑब्जेक्ट पूछा ना, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन तो था ही, और पेंशन ऑफ पीपल था। सही है, देख लेते हैं इसका। बलवंत राय मेहता कमिटी submitted its report in 1957 and recommended the establishment of a scheme of democratic decentralization, which ultimately came to be known as Panchayati Raj. Second, the 72nd and the 73rd constitutional amendment provided for participation of people by third tier of governance. Financial mobilization is not the fundamental objective of PRI. ये 73rd और 74th होना चाहिए क्या? हाँ, 73rd 74th होना चाहिए, 72nd right. Even though panchayat have power to collect revenue, political accountability refers to the responsibility or obligation of government official to act in the best interest of or the face consequences. मुझे लगता है वो उन्होंने फंडामेंटल पूछा ना, वरना अगर जनरल पूछा होता तो सारे ही थे। एक वन ऑफ द, यहाँ पे ये लिख रहा है फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन इज नॉट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआरआई। तो सेकंड ऑप्शन है ना? हाँ, तो ये नहीं होना था ना, बी सॉरी ए होना चाहिए था, बी का ए होना चाहिए था। इसने पता नहीं सी क्यों दिया हुआ है फिर। बी का, अच्छा 2 को भी हटा रहे हैं, हाँ ठीक है, 2 और 4 हटा दिया ना इसने, तो सी हो जाएगा। ठीक है,
सही है। ठीक है। नेक्स्ट है Next है the government enacted the Panchayat extension to scheduled areas PISA Act in 1996. Which one of the following is not identified as its objective? To provide self-government, to recognize traditional rights, to create autonomous recognize in tribal areas, ये भी है ना, to नहीं, रुको, to free tribal people from exploitation. D. डे भी सही लग रहा है, ये भी हाँ ए है ना, फर्स्ट वन है ये। सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है क्या? ऑटोनॉमस हाँ। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो हाउस तो में होना यार, चाहिए। हाँ, फंक्शन एज Yeah. सेल्फ गवर्नमेंट को लिखा था कहीं। ये आई थिंक सी स्टेटमेंट है ना, वो थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को लैंग्वेज में, मतलब इससे कोई मिसप्रिंट हुआ है मेरे ख्याल से। ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं रहा होगा, कुछ और था ये। बट अगर ट्राइबल एरियाज है तो उनको वो देते हैं ना ऑटोनॉमी की, वो जैसा चाहते हैं वैसे रूल कर ले और ये सब। वो तो ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट देखो कुछ अजीब सा लग रहा है। टू क्रिएट ऑटोनॉमस रिकॉग्नाइज इन ट्राइबल एरियाज, इसका क्या हाँ तो मतलब? वो सी वाला 6 शेड्यूल है ना। हाँ वो 6 शेड्यूल है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सही है। मतलब यहाँ पे शायद ये लिखना चाहिए था ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जो भी था। चलो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। होना चाहिए ना, तो आंसर क्या सी होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 5 का सी है, ठीक है, वो वही वाला था। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू इंश्योर सेल्फ रूल फॉर द बल्क ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि वो पंचायती राज जो था वो उनके अकॉर्डिंग नहीं था, तो इस चीज के लिए उनके लिए स्पेशली डिजाइन करके लेके आए थे पैसा एक्ट। और अ स्टेट लेजिस्लेशन on the panchayat in the scheduled area shall be in consonance with the customary law, social and religious practice and traditional management of the community resources, ठीक है। To endow panchayat with such power to enable them to a prevent alienation of the land in scheduled areas, ठीक है, लैंड का alienation रोक सके वो लोग। To restore any unlawfully alienated लैंड ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, जो पहले से एलियनेटेड हो चुके उसको रिस्टोर कर सके। देन पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मनी लैंडिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। हमने देखा था मॉडर्न इंडिया के अंदर वो धीकू नाम से बोलते थे उनको, और मनी लैंडर्स ने एक्सप्लॉयटेशन कर रखा था उनका। नेक्स्ट इज धीकूज। क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन इन द ट्राइबल एरियाज इज नॉट द ऑब्जेक्टिव अंडर द एक्ट, ठीक है, वो 6 शेड्यूल में था। 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अच्छा वो रीजन लिखना था, इसने रिकॉग्नाइज लिख दिया है यहाँ पे, मिसप्रिंट कर दिया वही। बाकी सब हमने देख लिया। नेक्स्ट चलते तो हैं। ये यही मिसप्रिंट है या ये यही होता तो मिसप्रिंट सही है। होता? अरे ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे रीजन लिखा था, तभी मैं कह रहा हूँ ना, ये कोई सेंस नहीं बन रहा इस लाइन का। अगर पढ़ो ना ऑटोनॉमस रिकॉग्नाइज इन ट्राइबल एरियाज, ये रीजन था। ठीक है। नेक्स्ट है इन दैट एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायत पीसा एक्ट व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड इन scheduled areas. बताओ। यस है ना, आई थिंक। हाँ होगा और क्या। ठीक है। ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये गलत नहीं है? सही तो है। ये तो सही सही है, है। माइनर फॉरेस्ट सही है। सही है। हाँ ग्राम हाँ, सभा क्या होती है? ग्राम सभा मतलब पूरे विलेज के लोग हो गए ना, वो होता है ग्राम सभा। फिर सब कम्युनिटी ओनरशिप का कंसेप्ट हो गया ना। बट ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये ट्राइबल्स के लिए रहता है ना। तो ग्राम सभा में लोग कौन होते हैं? वो ट्राइबल्स के ही तो लोग होते हैं। अगर तुम सपोज एक ट्राइब, मतलब ट्राइब के अंदर रह रहे होते तो तुम सब लोग मिलके, अपन सब लोग जैसे अगर ट्राइबल लोग होते तो हम सब मिलके ग्राम सभा के मेंबर्स होते। तो ग्राम सभा यानी कम्युनिटी है, और कम्युनिटी की ही ओनरशिप है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। चलो अरे ठीक ग्राम है। सभा मतलब ट्राइबल्स की ग्राम सभा से मतलब है, वो वर्ड से अच्छा। नहीं मतलब है, वो कंसेप्ट है वो। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है recommendations of gram sabha is required for granting prospecting license or mining lease for any mineral in the scheduled areas. ये है ट्विस्टिंग क्वेश्चन। हाँ ये तो सही है ना। हाँ सही है।
नेक्स्ट पे तो ऑल 3 होना चाहिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। ओहो बी है इसका आंसर। ठीक है, कौन सा वाला गलत हो गया? का बी बता रहा है ये। दैट इज 1 2 थर्ड नहीं है। अच्छा, रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड। तो देखते हैं इसमें क्या था। Recommendation of Gram Sabha or Panchayat at appropriate level shall be mandatory for granting the prospecting or mining license for minor minerals in the schedule areas. अच्छा, अच्छा मेजर मिनरल्स क्या होता है? माइनर तो कोई भी कर सकता है ना। यहाँ नहीं लिख रहा है ना इसको, तो यहाँ पे फॉर माइनर मिनरल्स के लिए उनकी जरूरत होगी। ठीक है। सेकेंड, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं शैल एक सेकंड, अभी क्लियर नहीं हुआ मुझे, माइनर है या मेजर, किसके लिए चाहिए होता है? माइनर के लिए। माइनर के लिए परमिशन दे सकता है वो, मेजर के लिए नहीं दे सकता। माइनर माइनर ठीक है ठीक है। Second, the state legislature shall ensure that the panchayat at appropriate level and the Gram Sabha are endowed specifically with the ownership of minor forest produce, power to prevent alienation of land in schedule area and to take appropriate action to restore any unlawfully alienated land of the scheduled tribe. Okay. The principle that should govern. Sorry, दूसरा question. चलते हैं. Question number 7. Question 7. Which one of the following authorities makes recommendation to the governor of the state as to the principles for determining the taxes and duties which may be appropriated by panchayat in that particular state? फिर से state determining duties तो state finance स्टेट commission फाइनेंस कमीशन भी होना चाहिए ना। भी होगा और क्या? तो लग रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट लग रहा है, देखिए तो हाँ ये भी बी और सी, देखिए तो आंसर। नहीं तो मिनिस्टर गवर्नर को रिकमेंडेशन क्यों देगा, वो तो कर ही देगा फिर तो। हाँ सही बोल रहे हो, मिनिस्टर तो कहाँ देगा उसको। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। वैसे आई थिंक पंचायती राज मिनिस्ट्री भी लिखा हुआ है। 7 चलो देख लेते हैं। 7 का बी है, 7 का बी है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है। हाँ यार, पंचायत ही तो होना चाहिए था। तो आर्टिकल 243Y, Governor of a state shall, after every 5 year, constitute finance commission to review financial position of municipality and make recommendation to the governor as to first the principle that should govern a distribution between the state and the municipalities of the net proceed of the taxes, duties, tax levied by the state and allocation. Okay. The determination of taxes, duties, tolls, fee that may be assigned to the municipality and grants in aid to the municipality from the consolidated fund of the state. Okay. इसका आंसर क्या था? State Finance Commission. ठीक है। If a panchayat is dissolved, elections are to be held within 6 months. 6 months. सही है, सी आई पढ़े थे अपन लोग। ठीक है, वो नहीं दे रखा, सी है वैसे तो ये। और अगर इन केस उसका डिसोल्यूशन नॉर्मली उसका 6 मंथ से कम था तो फिर वहां पे इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है ना। हाँ अभी पढ़े थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. In India, the first municipal corporation was set up in which one of the following? Calcutta, Madras, Bombay. Madras है ना? मद्रास है। ब्रिटिशर्स 1760 समथिंग 1764 था शायद। राइट, मतलब ऐसा ही कुछ था। उसके बाद बॉम्बे था शायद ना, मद्रास के बाद। सॉरी बड़ी जल्दी बना दिया, 1687 में था। ओह, बहुत ही जल्दी बना दिया था। 1687। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद उसका अभी पूरा नाम क्या है? बृहस्पति या क्या? कौन सा बॉम्बे का? बीएमसी है ना, बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन। ना एक बड़ा नाम है ना। बीएमसी दो जगह का है वो।
दो जगह का है, बेंगलुरु का भी बीएमसी नाम से ही है और यहाँ का बॉम्बे का भी बीएमसी नाम से ही है। भुवनेश्वर का भी वही है, बीएमसी। करेक्ट। ठीक है। तो बुलंदशहर का भी वही। अकॉर्डिंग टू तो अर्बन लोकल बॉडी दो 4 मेजर कैटेगरीज होती है अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल, बोर्ड और कमिटी आता है, फिर है टाउन एरिया कमिटी और फिर है नोटिफाइड एरिया कमिटी। Presently, they are established in states by the act of concerned state legislatures and in the union territories of the act of Parliament of India. ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में है कि 3 अथॉरिटीज होती है, नेमली काउंसिल, स्टैंडिंग कमिटी और कमिश्नर। द काउंसिल इज द deliberative and legislative wing of corporation. It consists of councillors directly elected by people as well as few nominated person. The council is headed by a mayor. He is assisted by deputy mayor. He is elected in majority of states for a 1-year renewable term. और कितनी बार कर सकते हैं दोनों? अरे वो हर स्टेट का अलग होता है, इसको मतलब ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, हर स्टेट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। The standing committee are created to facilitate the working of council, which is too large in size, and the municipal commissioner is the chief executive authority of the corporation. ठीक है। ठीक है, ये हो गया डन अपना। नेक्स्ट है वेल सॉरी In India, consider the following statement. Part 9 of the Constitution of India contain provisions for Panchayat and inserted in the Constitution 73rd Amendment Act 1992 पार्ट 9 है Uh, और इनका ये of the Constitution of the Part 9 of the Constitution contains provision for municipalities, a municipal council and a municipal corporation for every state. Council क्या है भाई? काउंसिल। Oh, sorry. हाँ। आई थिंक ये ए तो नहीं है ना, ये तो फिर उसके लिए होना चाहिए। करेक्ट। एक सही है सेकंड ना, जस्ट prosperity। ये पार्ट 9 लिखा है ना, हाँ हाँ पार्ट तो पार्ट Part 9 12 तो में है। नहीं है। नो पार्ट 9 में है, पार्ट 9A भी शायद सही है। सही है वो शेड्यूल में जाना। शेड्यूल है, वो आप शेड्यूल में कंफ्यूज हो रहे हो। सॉरी। शेड्यूल 11-12 है। See, part 9 is correct. Part ये 9A दिया है, part 9B है cooperative societies, okay? वो नहीं दिया है, okay? सही कह रहा। ऑलराइट, तो फिर दोनों ही सही है ना, मतलब Correct. क्वेश्चन नंबर 10 का पता नहीं ऑप्शन क्यों नहीं लिख रहा हूँ। तो पार्ट 9 एडेड द पंचायत, तो ये आर्टिकल हमने देख लिया था इसका। And then 11th schedule was added to the constitution, which has 29 functional items of the panchayat. 74th constitutional amendment act added the part 9A, ठीक है, entitled the municipalities 243P से 243ZG, and 12th schedule added 18 functional items of the municipality. ठीक है, तो जो functional items की लिस्ट देखे तो पंचायत के पास ज्यादा functional item है as compared to the म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। और व्हाट कुड बाकी बी द हम रीजन? अरे देखो, नहीं अच्छा वो पता नहीं, ये म्युनिसिपैलिटी मुन्नी 18 साल की हो गई, ठीक है, तो 18 फंक्शन आइटम है। अरे बढ़िया सही है। और उसमें 26 है, ठीक है, सॉरी 29 है। 29 और 18 29 ओ तक है ना, वो 243 ओ तक, हाँ। वो पी से लेके जेड जी तक है। पी से पंचायत होता है ना, तो पंचायत पी से पहले ही पंचायत का खत्म हो जाता है, मतलब ऐसे याद कर सकते हो, पी से स्टार्ट होता है म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने 243 क्या बोल रहा है? नेमोनिक रिपीट कीजिए। मुन्नी 18 बोला है। मुन्नी क्या फिर से अरे कोई 18 साल की मुन्नी, ठीक है, मैं लिख के दे हे भगवान, नहीं रहने दो, इतना काफी है, रहने दो। मुन्नी को उठा लेगा ये। अरे भाई ऐसा कौन नाम देता है?
ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो आगे देख, नगर पंचायत एंड एरिया इन द ट्रांजिशन, ये देख लिया। म्युनिसिपल काउंसिल देख लिया फॉर स्मॉलर अर्बन एरिया, और फॉर लार्जर अर्बन एरिया के लिए हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। जिला परिषद किसमें होगा? मंडल प्रजा परिषद, ट्राइबल काउंसिल। ट्राइबल वाला तो ये इस स्टेट में होगा ना, मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इस तरफ चलते हैं, आंध्र प्रदेश किस में आएगा? आंध्र प्रदेश में शायद मंडल बोलते हैं उधर शायद इसको। मंडल। हाँ, मंडल बोलते हैं उधर। ठीक है, असम। असम में तो ट्राइबल काउंसिल आ जाएंगे, आई थिंक। ट्राइबल काउंसिल, वो तो उसमें तो एडीसी है ना, एडीसी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। हाँ। ट्राइबल काउंसिल होगा क्या वो? मुझे लग रहा है मिजोरम वाला वो जो एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत होगा। सही कह रहे हैं, हाँ। ठीक है, इसका आंसर ही देख लेते हैं। आई थिंक बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, इसका आंसर ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था ना, रेफर टू इंडियन पॉलिटी। 10th का दिन रखा। अजीब पागलपन है। आंसर क्या है? आंसर दिया हुआ है। हाँ, आंसर दिया हुआ है, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। 4:12 हो चुकी है। इसको खत्म कर देते हैं ना, 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो फिर अपना ये वाइंड अप हो जाएगा। तो ऑप्शनल भी नहीं है ना, टेंशन नहीं। ठीक है, इसका यार आंसर नहीं दिया हुआ, बट ये फालतू ही क्वेश्चन था। आई थिंक कोई रेलेवेंट है नहीं का, ये क्या क्या बोलते हैं उन स्टेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। dash instill into the vast million of workers, men and women, who actually do the job, a dash sense of partnership and of cooperative performance, dash dash dash. The above passage related to वाह, कम्युनिटी डेवलपमेंट है ना? कम्युनिटी डेवलपमेंट, integrated development, कम्युनिटी लग रहा है। ठीक है, इसका देख लेते हैं, पता नहीं क्या अजीब क्वेश्चन है। The United Nations defines community development as a process where community members come together to take collective action and generate solution to the common problem. UN website. Wow. इतना ही दिया हुआ है इस पे। कम्युनिटी डेवलपमेंट, पता नहीं कब आया ये क्वेश्चन। ऑलराइट, आई थिंक अभी वो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है, तो कुछ और NRLM है उसके इंस्टेड ऑफ दैट। NRLM भी 2 है ना, एक अर्बन और रूरल में। हाँ, वो रूरल में तो है, अर्बन में है क्या? एक सेकंड। NRLM का तो मतलब ही अपने आप में रूरल के लिए हो गया ना, वो NULM जो है वो अर्बन के लिए। NRLM तो रूरल के लिए ही है। राइट, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। A college student desires to get elected to the municipal council of his city. The validity of his nomination would depend on the important conditions, among others that he obtains permission from the principal of his college. ये तो नहीं चाहिए। He is member of political party. His name figures in the voters list. He files a declaration owing allegiance to the constitution. C होगा ना? C या D होगा, मुझे D लग रहा है। अभी एक हुआ था ना केरला में, यंगेस्ट म्युनिसिपल वाला, एक लड़की हुई थी ना। इनकी एज क्या चाहिए बेसिकली, इन तीनों की, नगर काउंसिल और कॉर्पोरेशन में? आई थिंक वो विलेज पंचायत वाली होगी 21 की। बाकी वैसे ये चीजें जो है शायद मैटर नहीं करती। सी होना चाहिए ना। आई थिंक सी लग रहा है। चलो देख लेते हैं इसको, सी होना चाहिए वैसे तो। 13 का पता नहीं क्या घास काट रखी है इसने, ऑप्शन ही लिखने बंद कर दिया एंड में। एंड में आता है जस्ट लाइक
घास काट तो इसके है क्वालिफिकेशन की सिटीजन होना चाहिए, 21 ईयर्स होनी चाहिए, तो कॉलेज में होगी तो नहीं, छोड़ो। नहीं वो तो सब्जेक्टिव हो गया काफी। His or her name is registered in the electoral roll of ward. He or I she think is यही होना चाहिए था ना, हाँ यही वोटर लिस्ट के अंदर नाम होना चाहिए। ठीक है। Next है, he or she is not earlier disqualified for the contesting municipal corporation. Of course, he or she must not be an employee of any municipal corporation in India. Must not be an employee. एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए ना, मतलब पुरस्कार होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा ना तो हाँ सही बोला। ठीक है। Hence, he or she should satisfy the condition of option C. His name figures in the voters list for which he must have attained 18 years. He or she doesn't fulfill this criteria, then the criteria of 21 years is not satisfied. Cool. मिल गया आंसर? हाँ C. घास कर देगी ना। घास हम घास हमारी। अरे भाई बहुत कुछ सीखने को मिला। In the new Panchayati Raj Bill enacted in 1993, there are several fresh provisions deviating from the past. Which one of the following is not such provision? ठीक है. A number of added responsibilities in the area of agriculture, rural development, primary education, and social forestry, among others. New Panchayati Raj Bill. सही लग रहा है ना? ठीक है। मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। ठीक है। Elections being made mandatory for all posts at the same time they are due. मैंडेटरी वर्ड आ गया इसमें। हाँ आई थिंक इलेक्शन कराना तो मैंडेटरी है ना। हाँ करेक्ट। हाँ तो ये सही होना चाहिए। ठीक है। A statutory representation for women in panchayat up to a third of the strength. हाँ भी तो है। भी सही है, सही है। ये तो सही है। हाँ हाँ इसी के लिए कहा था। Regular remuneration of the panchayat members so as to ensure their punctuality and accountability. ये नहीं है शायद। ये तो नहीं तो इतना मनरेगा हो जाता है ये तो। हाँ ये तो काफी ज्यादा फालतू दे दिया, ये तो देख के पता लग जाता है। ठीक है। राम राज्य वाला कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ। डू नॉट हैव प्रोविजन रिलेटेड टू रेन्यूमरेशन, ये भी बोल रहा बहुत ही हलवा था ये वो। नेक्स्ट लास्ट, पंचायती राज। Panchayati Raj was first introduced in India in October in 1959 in which state? राजस्थान। नगौर। नागौर राजस्थान। संजय जी का घर। इससे पहले शायद तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में शायद महाराष्ट्र में हो गया था ना क्या? ये ऑफ नहीं, सबसे पहले यही हुआ था राजस्थान में। नेहरू जी आए थे यहाँ पे। सही है। और वो नहीं बट उसके पहले कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था 1952 74 में। नहीं सॉरी, हाँ 52 में हुआ था। 52 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाँ सही बोलो। 52 में था। सुना तो है ये। क्या था वो बलवंत कम्युनिटी रिकमेंडेशंस पे था ना सर। सही कह रहा है। रिकमेंडेशन। भैया जी एक बात बताइए, वो इससे कितने वर्ड का लिखना है? 1200। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक सेकंड, ये किसकी रिकमेंडेशन थी? कम्युनिटी डेवलपमेंट बलवंत राय शायद 69 है ना कि 52? 52। सही। और नहीं मैं बोल रहा हूँ उसके पहले ही 1952 में वो हुआ था ना, वो बोल रहा था। एक ये नेक्स्ट नेशनल एक्सटेंशन सर्विस भी थी 1953 में। ठीक है, तो इन्होंने बेटर वर्किंग सर्विस के लिए कहा था। और बलवंत राय ने एक रिपोर्ट दी थी 57 में फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें 3 टायर पंचायती राज आ गया था, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से होंगे यहाँ इलेक्ट।
और village panchayat should be constituted with directly elected representatives, whereas the panchayat samiti and jila parishad should be constituted with indirectly elected members. ऐसा क्यों? कौन सा पॉइंट? ये सेकंड पॉइंट. ये तो है ही ना, मतलब उसके बाद में डायरेक्टली लोग नहीं अपॉइंट करते ना उन्हें, वो आपस में जो मेंबर्स रहते हैं विलेज पंचायत के, फिर वो आगे चल के सरपंच को मतलब ऊपर जो उनके होते हैं ना उसको सिलेक्ट करते हैं, जिला परिषद वाले। ग्राम प्रधान को लोग पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर बाकी वो लोग सेलेक्ट करते हैं ना मिलके, मेंबर्स ऑफ, जैसा प्रेसिडेंट का होता है वैसा। राइट। ओके, ठीक है, बाकी पढ़ू क्या? आई थिंक फिर तो काफी सारी है यार। हाँ वही कह रहा। और बाकी पंचायती राज के जो कंपल्सरी प्रोविजन और वॉलंटरी प्रोविजन है वो याद है? कौन याद करेगा? वो सब तो नहीं, आ ठीक है। जाता है। एक सेकेंड, ये आज जाता है। पंचायत से में है ना, किस किसने रिकमेंडेशंस दी है? एलएम सिंघवी, एक अशोक रिलेटेड मेहता। क्वेश्चन पूछता हूँ, ओके? क्या यूनियन टेरिटरीज में ये है पंचायत? ना, एक्ट थ्रू आया था ना शायद, नहीं आया था? हाँ, उसमें यूनियन टेरिटरी में आता है। दादरा ये एंड अभी तो नगर पढ़ा हवेली था में हमने। है, दादरा एंड नगर हवेली में है। करेक्ट करेक्ट। अभी हमने है ना 73rd में पढ़ा था ना कि यूनियन टेरिटरी के स्टेट का भी फाइनेंशियल डेवल्यूशन ऐसा कुछ। सो वो 243L, ओके, 243L में ये मेंशन्ड है, ओके? मेरे को एक्चुअली वो दादरा एंड नगर हवेली का मैंने सुना था, इसलिए मेरे को वो चीज याद आ गया। ऐसे नहीं मैंने तो पहली बार सुना है क्वेश्चन, तो सही है। ठीक है, तो मतलब कल पॉलिटी से रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा देखना है या फिर कल से शुरू करें इकोनॉमी, ये बताओ। तो देख लेते हैं अमेंडमेंट सब जो बचा वो चीजें हैं ना, सब कुछ इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, हाँ, मतलब वो चीज कर लेते हैं, और साथ में हम जो सारी कमिटीज है ना उनका भी देख लेते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशन था, क्योंकि कई में पूछ लेता है कि इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, कितना टीयर का सिस्टम था। सही कह रहा है। तो वो सही। चीज देख लेते हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देख लेते हैं, ठीक है। शेड्यूल और पार्ट्स भी। वो जीएसटी का भी थोड़ा देख लो ना, मतलब क्या बोलते हो, अगर किसी। आ जाएगा शाश्वत। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मतलब ये 2-3 चीजें रखते हैं, किसी के दिमाग में और कुछ हो तो वो प्लीज ग्रुप में डाल दे, तो अपन कल उसको डिस्कस कर लेंगे और मंडे से फिर फ्रेशली इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। 2020 का क्वेश्चन पेपर पॉलिटी वो देख लेंगे ना, वो भी। हाँ, वो भी देख लेंगे, करेक्ट। ठीक तो ये 2-3 चीजें देख लो, मतलब देख के आना तो थोड़ा सबको बेटर रहेगा, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत से अगर पढ़ने लगेंगे ना इसको, सारी कमिटीज को, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो बेटर है कंसाइज नोट्स हो सबके पास अपना अपना, तो ऐड ऑन कर सकते हैं इजीली, है ना? ठीक है, एक और चीज, ये कुछ कमिटीज के लिए कुछ है क्या डॉक्यूमेंट या जहाँ सब समराइज्ड है? विजय जी हमारे काम कुछ कर रहे हैं। शॉर्ट काम मिलेगा। बट वो चाहिए क्या वो पता नहीं। मतलब मेरे को क्या चाहिए अभी, टॉपिक जैसे ट्राइबल है तो उसमें क्या कमेटी है, काका कमेटी है, ठीक है, उसी तरह मेरे को एक चाहिए था बस। मेरे को भी चाहिए था। सब कुछ विजय किसी के पास है क्या? विजय जी के पास होगा, एनसाइक्लोपीडिया है ना। ठीक है, चलो कल देखते हैं, ओके? होगा तो निकाल- भेज दीजिए, फाइल में देख जैम। ताकि अपन सेल्फ अरे कर निकाल- लेंगे। निकाल मैं दिया। फर्स्ट कॉपी बुक किया हूँ। हाँ ओके, तो जैम बोर्ड में थोड़ा कुछ ऐड किया है, ओके? थोड़ा क्विकली बाद में देख लो, ओके? PDF निकाल दूंगा, ठीक है, एंड कल करेंगे। दिखा देना बस। वाइंड अप करते हैं आज का, है ना? यस।